Good morning. How are you all? Me too, fine. Children, last time what we have discussed? Chapter 7, explanation part. What is the name of the chapter? Do you have remember what we discussed in the chapter? There is a person, there is a man named? What is the name? Rip Van Winkle. How was he? He was lazy or active? Lazy. He was lazy, right? So what he did? He used to do work or no? No. But his wife always asked him to go and do the work. But does he like to do work? So what did he decided? He used to sleep only. So again and again when his wife asked him to go and get a job, so what he decided? He decided to run away. So he went to the mountain. Right? So when did he come back? Did he come back from the mountain? No. क्यों आया तो था बेटा? He came back ना? He met his daughter, if you have remember. Then after 21 years he came back. He came back after 21 years. Along with whom? Along with Rip Van Winkle. Who went there on the mountain? Dog, his companion, है ना? Funny looking man तो उसे वहाँ पे मिल जाता है ना on the way. He found funny looking man. Do you have remember about funny looking man? चलो then after 21 years he came back. Then no. Then he suppose Rip Van Winkle. Now here is Rip Van Winkle. He came back after 21 years and this is his village. Now tell me, villagers identify him. Who is he? Did villagers recognize him? Villagers ने उसे पहचान लिया था कि क्या ये रिप वैन विंकल है? और रिप वैन विंकल ने विलेजर्स को पहचाना था? नहीं. क्यों? बिकॉज लॉन्ग गैप हो गया था ना. 21 ईयर्स के बाद कोई आया है तो लॉन्ग गैप हो गया. मैं आप लोगों को 21 ईयर्स के बाद मिलूंगी तो आप भी मुझे नहीं पहचानोगे. मैं ऐसे चलूंगी और आप लोग मेरे जितने हो जाओगे, है ना? तो वो जल्दी आ गए ना 21 ईयर्स के बाद. ठीक है, तो 21 ईयर्स लॉन्ग गैप हो जाते तो नहीं पहचाना. फिर क्या होता है, वो परेशान हो जाता है, मैड हो जाता है, थोड़ा मैड टाइप हो जाता है. देन ही आस्क्ड एनीवन नोज रिप वैन विंकल. तो एक क्राउड में से एक आवाज आती ना, यस आई नो रिप वैन विंकल. हु वाज शी? हिज डॉटर. उसकी बेटी थी. सो देन व्हाट हैपेंड? देन फादर एंड डॉटर हग ईच अदर and Rip Van Winkle realized that how silly he was, how much time he wasted for no reason, just for sleeping. And then he got a lesson that don't be lazy. Lazy नहीं होना चाहिए. Yes, one must should be active. अगर हम active होंगे तो we can get everything. अगर हम lazy होंगे तो हमें कुछ भी नहीं get कर सकते. We cannot get anything. Okay, so today we will discuss the exercise of this chapter Rip Van Winkle. Who is first question? My first question is, who is the writer of the? I asked you, who is the writer? Writer. Washington Irving. बोलना है बस, सोचोगे नहीं कुछ पूछे है, क्या पूछे. ओके, नाउ रीड दिस वर्ड्स अलाउड. बैरल, बेटा स्पीक आउट आफ्टर मी. ओके, स्पीक आउट. बैरल, चेंज, फॉक, रिटर्न, रिकॉग्नाइज. डू यू नो द ऑल मीनिंग्स ऑफ दिस? बैरल क्या होता है बेटा? या काइंड ऑफ कंटेनर. यस. चेंज,
समथिंग डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट, समथिंग यूनिक. लाइक उनके पास एक ड्रिंक था ना, ड्रिंक इन द बैरल दे हैव अ ड्रिंक. हाउ वाज इट? इट वाज समथिंग स्ट्रेंज, समवट स्ट्रेंज. व्हाट इज दिस मीनिंग? व्हाट इज दिस? फोक. फोक होते हैं, विलेजर्स होते हैं ना, विलेजर. लोगों को फोक कहते हैं, फोक स्टोरीज, लोगों की कहानियां. लोग. रिटर्न, लौट, वापिस आना, लौट के. रिकॉग्नाइज, अरे रिकॉग्नाइज, पहचानना. डू यू रिकॉग्नाइज मी? क्या आप मुझे पहचानते हो? यस, तो रिकॉग्नाइज यही होता है. नाउ, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड रिप वैन विंकल स्लीप? 21 years. Yes. रिया बेटा, राइट. Yes. Now multiple choice question बेटा. Tick the correct answer in each. Rip Van Winkle was very lazy. Are you sure? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Nupur. Clever, active, lazy. Very good. So tick this one. Sit beta. Who was Rip Van Winkle's favorite? Yes. Who did Rip Van Winkle? Good. Who was the shooter? B. Very good. Done? Everybody has done this one? Yes, ma'am. Shall we move on? No? Do it fast. Yes, beta. Done? Yes, ma'am. Yes, come to here. Yes. Read and answer. What did the funny looking man do when Rip Van Winkle placed the barrel on the ground? Rip Van Winkle जब बैरल को ग्राउंड पे प्लेस कर देता है, रख देता है, देन फनी लुकिंग मैन क्या करते हैं? दे यस ड्रिंक पीते हैं तो क्या कहते हैं? दे डिप अ मग इनटू द बैरल. दिस इज द मग. दे डिप अ मग इनटू द बैरल एंड filled it with drink and drank. How was the taste? Somewhat strange. Somewhat strange. Later I'll make you write. अभी मैं आपको बस orally समझा रही हूँ क्वेश्चन आंसर, है ना? अभी सुन लो बस. Who did Rip Van Winkle call after waking up? Did he get any response? Rip Van Winkle, when he was on the mountain, right? He called someone. माउंटेन पे था जब उसने किसी को आवाज लगाई. Did he get any response? क्या कोई रिस्पॉन्स आया? Whom did he call? किसको आवाज लगाई थी? Yes, very good Garvit. He called dog. Did he get any response? No, he did not get any response. What made Rip Van Winkle feel that the village had changed? Yes or no में नहीं बेटा. What made Rip Van Winkle feel? Rip Van Winkle ने feel कैसे किया कि village क्योंकि he had slept for 21 hours. 21 years, not hours. 21 years. 21 years के बाद जब विलेजर आया, विलेज में आया तो विलेजर वाज चेंज्ड. यस. तो कोई भी उसके जैसे वहाँ पे नहीं पहचान रहा था उसको, ना ही वो किसी को पहचान पा रहा था. What had happened to the Van Dam? Van Dam के साथ क्या हुआ था? Van Dam, he is Garvit is right. She passed away. She died.
Why was Rip Van Winkle overjoyed? Rip Van Winkle was overjoyed. क्या होता है बेटा, पहले overjoyed बताओ. Overjoyed. Joy means happy. बहुत ज्यादा हैप्पी क्यों था? क्योंकि उसको नहीं था. So Rip Van Winkle was overjoyed because he met his daughter. Which incident in the story suggests that Rip Van Winkle was a kind man? कौन सी स्टोरी, कौन सा इंसिडेंट, कौन सी घटना बताती है कि रिप वैन विंकल एक काइंड पर्सन था? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. बिकॉज ही वॉज लेजी, ही डज नॉट लाइक टू डू एनी वर्क, बट वेन फनी लुकिंग मैन आस्क्ड हिम प्लीज हेल्प मी टू कैरी दिस बैरल अप टू द रिवर साइड, सो ही हेल्प्ड हिम. केव में हेल्प की थी, केव तक ले जाने के लिए बैरल को. यस बेटा, रीड दिस सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. यस, माय सेंटेंस इज ही वेंट अप द माउंटेन 21 years बैक. लिसन, ही वेंट अप टू द माउंटेन अप टू 21 years. ठीक है. हु सेज दिस वर्ड एंड टू whom? व्हाई डज ही गो अप टू द माउंटेन? सेकेंड क्वेश्चन. Who is he? He कौन है इधर? Whom does he go with? किसके साथ जाता है? मैं दोबारा से समझा देती हूँ. He went up the mountain 21 years back. 21 years माउंटेन पे रहा वो. ठीक है. तो अब ये बताइए, पहला क्वेश्चन, who is he? कौन है यहाँ पर he? he का मतलब क्या है यहाँ पे? किसके बारे में बात हो रही है? लड़का तो है. कौन लड़का? Rip Van. First question done. Rip Van Winkle. Next, whom does he go with? Whom does he go with? Dog. Now, why does he go up to the mountain? Why he go up to the mountain? Yes, because he was tired. काम के लिए बोलती थी. So क्या लिखेंगे? Because he was tired of his wife. He was tired of his wife. लिखना तो है बेटा. अभी लिखो या बाद में लिखो, as you wish. Yes. Who says these words and to whom? कौन किससे कहते हैं ये बातें? Yes. Rip Van to daughter to Rip Van. Yes बेटा. Do you think Rip Van Winkle started working hard after waking up from his long deep sleep? अब थोड़ा सा आपको अपने आप से सोचना है. Think yourself. Higher order thinking. You have to think yourself. Do you think Rip Van Winkle started working hard? जब Rip Van Winkle 21 years के बाद उठा होगा, आपको क्या लगता है वो मेहनत करनी उसने स्टार्ट कर दी होगी? Yes or no? एक्चुअली स्टोरी में नहीं दिखाया है हमें, उन्होंने स्टोरी में तो बताया ही नहीं है, बट हमें अपने आप सोचना है कि अगर आपको कोई आप आलसी हो सपोज और आप 21 इयर्स के बाद उठे हैं, तो आपको क्या, आपने सब कुछ मिस कर दिया ना. इतनी जल्द आपके मतलब एकदम से इतनी बड़ी बेटी आपने देखी, बेटी थी नहीं आपके, ऑल ऑफ सडन इतनी बड़ी बेटी आ जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा ना यू वर सो लेजी. तो अब मुझे मेहनत करनी है लाइफ में, अब कम से कम अब तो मैं ऐसे लेजीनेस में टाइम वेस्ट ना करूं. तो क्या लगता है रिप वैन विंकल ने भी ऐसे ही किया होगा? यस, रिप वैन विंकल ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया होगा. सो यस, रिप वैन विंकल स्टार्टेड वर्किंग हार्ड आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम हिज डीप स्लीप. बिकॉज ही गिव रीजन बताइए. बिकॉज ही मिस्ड एवरीथिंग in his life. His daughter, his wife passed away, everything he missed. So now he got a lesson that don't be lazy.
अच्छा, अब यहाँ देखो बेटा, गिविंग इंस्ट्रक्शन। गिविंग इंस्ट्रक्शन होता क्या है कि मैंने आपसे कहा प्लीज गिव मी, पास मी दिस इरेजर, पास मी दिस बुक, तो ये क्या हो गया, मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, राइट। अगर मैं यही इंस्ट्रक्शन आपको रूडली करके बोलूँ तो विल यू लाइक मी और नॉट? सिंपल सी बात है, कोई किसी को रूडली बोलेगा तो विल यू लाइक, डू यू लाइक देम? नहीं। अगर आपसे कोई प्यार से बोलेगा डू यू लाइक, है ना। तो इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि अगर हमें किसी से कुछ कहना भी है, पूछना है, लेना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, तो बी पोलाइट, प्यार से, एवरीथिंग, ओके। सो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट टीयर पेजेस ऑफ योर नोटबुक। टीचर ने कहा बेटा पेजेस मत फाड़ो। क्यों मत फाड़ो? पेजेस फाड़ोगे तो क्या होगा, वेस्टेज होगा, पहली चीज। सेकंड, यस, मेन रीजन हो गया। पेजेस कहाँ से आते हैं? ट्री से, और ट्री को काटते हैं, उनसे पेपर्स बनते हैं, तो ट्री भी वेस्ट होंगे। तो ऑल, हाँ, ओवरऑल क्या हुआ, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी डू नॉट टेयर द पेजेस। द बस ड्राइवर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट लीन आउट फ्रॉम द मूविंग बस। बस ड्राइवर ने बोला कि चलती हुई बस से डू नॉट लीन आउट। लीन आउट मीन्स लाइक दिस, अंडरस्टैंड? विंडो से ऐसे नहीं करना है, समझ गए? लीन आउट क्या होता है, वॉट इट। तो इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए, हाउ, यस बेटा, इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए, हाउ शुड वी इंस्ट्रक्ट टू वन सेल्फ, लविंग वे, प्यार से, ओके, प्यार से हमें दूसरे को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, ठीक है। यस बेटा, वर्क इन पेयर एंड गिव इंस्ट्रक्शन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। योर फ्रेंड इज प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट। अब आपको इंस्ट्रक्शन देनी है अपने फ्रेंड को। देखो इंस्ट्रक्शन आपको कैसे देनी है, इंस्ट्रक्ट हिम नॉट टू डू सो। आपका फ्रेंड है, वो रोड पे खेल रहा है, तो आप उसे क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, बताओ? डोंट प्ले ऑन द रोड। व्हाई? इट्स नॉट सेफ फॉर यू। इफ यू वांट टू प्ले, गो इन द गार्डन एंड प्ले, गो इन द प्लेग्राउंड एंड प्ले। हाँ, यू कैन गेट इंजर हो सकते हो ना, एक्सीडेंट हो सकता है, यू कैन गेट हर्ट। योर ब्रदर इज गोइंग टू प्ले आउट इन द सन। आपका भाई सन में खेलने जा रहा है, सन इन सनी डे। आस्क हिम टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। आपको क्या कहना है, ओके, सन में आपको जाना है, खेलने जाओ, सनी डे है, बट सनी डे होगा, अगर हम खेलेंगे तो क्या होगा, टायर्ड होंगे, स्वेटिंग आएगी, तो हमारा क्या होगा, बॉडी को पानी चाहिए ना, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो हम उससे क्या कहेंगे, ड्रिंक वाटर। जितना ज़्यादा पानी हो पीना चाहिए, गर्मी में तो वैसे ही पीना चाहिए। Yes, beta. Now listening bit. Repeat after. So, the vowel sound E as in pet. Beta, read out this. What is this? Pen, sand, red, black, hat, message, pen, pen, metal, pen, metal, friend. Bread. Yes. Now we are going to do singular and plural. Beta, singular and plural already we have done, right? But आपको फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ. Yes, look here. Singular means, plural means 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है. Okay. So when a noun refer to thing, it is singular. When a noun refer to more than one thing, जब one thing की बात करें तो singular, more than one thing है तो plural है. अब देखो, I bought one muffin. इधर करना क्या आपको, fill in the blank with the plural form of the noun in bold. जो यहाँ पे bold letter में noun है ना,
उसकी प्लूरल फॉर्म आपको लिखनी है। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मफिन? मफिन की प्लूरल फॉर्म बताओ बेटा। मफिन्स। यस, गुड, डू इट बेटा। आई गॉट 1 स्टार। बताओ। स्टार्स। He plucked 1 mango but good. Now बेटा अब क्या करना है? मेल एंड फीमेल करेंगे। मेल ऑपोजिट इज फीमेल, बॉय ऑपोजिट इज बॉय। बॉय गर्ल बेटा। he she. Okay, like this. King, queen, boy, girl. Now come to the next. Beta, do it fast. It's you can do yourself. Lakshit, you can do yourself. इसमें देखने वाली क्या जरूरत है बेटा? अपने आप करो, छोटे बच्चे हो। यस बेटा। मैच द मेल्स विद द फीमेल। मेल को फीमेल से मैच करना है। व्हाट इज दिस? पहले ये बताओ क्या है। लॉयन। फर्स्ट राइट डाउन। व्हाट इज? टेल मी। फादर है। मैन। ये फीमेल है। ये एक होगा आई थिंक। ये फीमेल लग रही है, मेल लग रहा है। ओके ओके। डन। नाउ डू द मैचिंग। डू इट। आप तो कर लोगे बट मेरे को भी तो करना है। यस। अब बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है अगली एक्सरसाइज के लिए। इफ यू लिसन केयरफुली यू विल अंडरस्टैंड। मेक इट फास्ट बेटा, डोंट वेस्ट टाइम। यस, लिसन। अपोस्ट्रोफ बेटा ध्यान से देखो। अपोस्ट्रोफ क्या होता है? ये देखो ऊपर, इधर देखो। एवरीबॉडी लुक हियर। ये ऊपर जो एक कोमा है ना छोटा सा, ये अपोस्ट्रोफ होता है। मतलब मैंने कहा दीपिका। बेटा 1 मिनट। दीपिका, दीपिका का बुक, दीपिका की बुक। मैंने कहा दीपिका की बुक, दीपिका बुक लिखेंगे। दीपिका तो मैंने लिख दिया, काज कैसे लिखे? अब एपोस्ट्रोफी एस बुक। ओके डन। अब 1 मिनट। अब यहाँ पे लिखा मैंने रोहन की कैप। रोहन की कैप लिखनी है मुझे, तो कैसे लिखूं? रोहन अपोस्ट्रोफी, ऐसे बोलो। रोहन अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफ, अपोस्ट्रोफी नहीं, अपोस्ट्रोफ। रोहन अपोस्ट्रोफ कैप। ओके। अब बेटा यहाँ देखो, अब किसका डॉग है ये? रोहन का डॉग। रोहन डॉग। सीमा की डॉल।
सो कैसे लिखे? सीमा अपोस्ट्रोफ गुड। ग्रैंड मदर का स्पेक्टेकल्स है, कैसे लिखूं? ग्लासेस नहीं है बेटा, क्या लिखा है वही लिखना है। एक मिनट बेटा। यस जल्दी। यस बेटा डन। सॉरी डिड यू गेट? डोंट शाउट। यस बेटा आ जाओ इधर। मिस्टर मेहता वॉकिंग स्टिक कैसे लिखे बेटा? मिस्टर मेहता अपोस्ट्रोफ वॉकिंग स्टिक। नेक्स्ट बेटा नाउ लिसन, इधर देखो बेटा ध्यान दो। यूजुअली प्लूरल एंड इन एस, इन सच केसेस वी ओनली एड द अपोस्ट्रोफ टू शो द बिलोंगिंग। कोई भी चीज हमारी है, इसकी है, उसकी है, जिसकी भी है, ये शो करने के लिए ही हम अपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। पोजेशन शो करने के लिए कि बुक मेरी है तो मैं क्या कहूंगी? माइन। दिव्या की है तो दिव्याज। मम्मी मदर्स। टीचर की बुक टीचर्स बुक। पानी की बोतल वाटर्स बोतल। स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म। लाइक दिस। अब बेटा ध्यान दो, रीराइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग अपोस्ट्रोफ। इसका मतलब बताओ द ड्रेस ऑफ द पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट की ड्रेस है, तो अब इसको कैसे लिख? वेरी गुड दीपिका। आप सबको भी बोलना है बेटा, एक ही बच्चा नहीं बोलेगा, सबको बोलना है। बेटा अब यहाँ पे लगेगा अपोस्ट्रोफ। ऑलरेडी एस यहाँ पे लगा हुआ है, सी। ओके। ड्रेस DRES स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो ना। द बुक्स ऑफ द बॉयज, तो हम क्या लिखेंगे? बॉयज अपोस्ट्रोफ बुक्स। बेटा ध्यान दो, एक मिनट। अपोस्ट्रोफ लग रहा है एस पहले, ये ध्यान देना इस चीज का। लेडीज बैग LAD। डॉल है क्या? यस बेटा। नाउ लर्न न्यू वर्ड्स। Yes. Given below are words that you what people are like. Some words tell you what people do. Other are names of the people and things. Write this one in the correct column. One is done for you. अब हमें क्या करना है? इन कॉलम्स में सही वर्ड लिखने हैं। पहला कॉलम है what people are like. People कैसे होते हैं? एग्जाम्पल क्लेवर होते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ द पीपल एंड थिंग्स। अब हमें चीजों के नाम और पीपल्स के नाम बताने हैं, वो इसमें से चूज करके हमें इसमें लिखना है। किंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाकी हमें चूज करना है। एक मिनट।
व्हाट पीपल डू, और लोग करते क्या हैं वो हमें चूज करना और लिखना है। जैसे देखते हैं, एक मिनट, लुक तो है। अब यहाँ पे पहले हम ये वाला करेंगे, व्हाट पीपल आर लाइक, पीपल कैसे होते हैं। पहला है क्लेवर होते हैं, क्लेवर डन। नेक्स्ट पीपल कैसे होते हैं बेटा, एंग्री, वेरी गुड, एंग्री होते हैं। फिर जेलस, जेलस, हैप्पी होते हैं, वेरी गुड। अब आप थिंग्स के नाम बताइए और लोगों के नाम बताइए। इसमें कोई बैग, वेरी गुड, बैग, पॉइंट, इरेजर। ये इरेजर और शॉर्पनर कौन बोल रहे हैं, जिशान ओवर स्मार्ट हो या फिर दिख ज्यादा रहा है बेटा। मैंने कहा सिर्फ यहाँ से चूज करना है, अपना माइंड क्यों लगा रहे हो। What people do look, हाँ बेटा, पीपल क्या क्या करते हैं। एक तो पीपल लुक करते हैं और फॉरगेट कर देते हैं, गिव, कॉइन तो बेटा चीज होती है, बाय खरीदते हैं चीजें, बाय। और क्या रह गया, गिव, एक दूसरे को चीजें दे देते हैं, खरीदा, दिया, और भूल गए। डन। एक्टिविटी, लास्ट विट इज एक्टिविटी। यस बेटा, शाउट क्यों कर रहे हो। यस, लिसन, आवाज नहीं, सुनिए। यस बेटा, अब ये क्या है देखो, add ing to the following words, make necessary change in the spelling if required। हमें क्या करना है, ing लगाना है। अगर कहीं पे लगे स्पेलिंग में चेंज करना है तो कर सकते हो। नीट में ing लगाओगे तो क्या बन जाएगा, नीटिंग, मतलब निटिंग, निटिंग मीन्स स्वेटर बुनते हैं ना। यस, वेरी गुड, यस, स्वेटर बुनना, निटिंग। सो स्पेलिंग बताओ, ऐसा आ जाएगा, ing बोला मैंने, नीटिंग ये हो जाएगा, सिटिंग डबल टी आ जाएगा, बाइट, तो क्या करें, ई आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, गुड। नेक्स्ट हिट, डबल टी ing, प्लेइंग ing, सिंगिंग, डू इट फास्ट। जल्दी करो, नहीं बेटा, सिंगल टी आएगा, सिंगल है ये। 1 मिनट अच्छे से लिख देती हूँ, 2 मिनट रुको। ing तो है ही। यस, आगे देखो, द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ इन दिस सेंटेंस मीन्स दैट द चिल्ड्रन, बच्चों ने फन बनाया, मजाक बनाया। अब इसका मतलब है हैड फन विद हिम, वर टीजिंग हिम, थॉट ही वाज रूड, प्लेड विद हिम। हैड फन विद हिम है टीज हिम, मजाक बनाया मतलब उसको चिढ़ाया। अब सुनो, ये स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ये पूरी वही स्टोरी है जो हम कर चुके हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट अबाउट द जर्नी ऑफ द रिप वैन विंकल इन योर ओन वर्ड्स। अपने ही वर्ड्स में ये जर्नी लिखनी है हमें, ठीक है। नो, यस लिसन।
पहली पिक्चर देखो बेटा, लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन। रिप वैन विंकल आलसियों के जैसे बैठा है, आलसी, लेजी। सेकंड में ये माउंटेन बैरन है ना, फनी लुकिंग मैन आ गया, ड्रिंक वगैरह ये लोग वो जो स्ट्रेंज था कुछ। फिर यहाँ पे 21 इयर्स के लिए स्लिप हो गया। यहाँ पे डॉटर एंड फादर एक दूसरे से हगिंग कर रहे हैं। यस, तो हम देखो, यस बेटा, यस रिप, यस लिसन ऑल्सो। रिप वैन विंकल वेंट अप द माउंटेन, डोंट स्पीक लाइक दिस, अंडरस्टूड। रिप वैन विंकल वेंट अप द माउंटेन, रिप वैन विंकल कहाँ गए? माउंटेन पे। ही वॉज टायर्ड एंड डिसाइडेड, आवाज नहीं आई किसी की, अब लास्ट टाइम बोल रही हूँ, ओके पहले सुन लो फिर बातें करना। He was tired and decided to take some rest. रिप वैन विंकल माउंटेन पे जाता है, फिर वो थक जाता है तो क्या सोचता है कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। Suddenly funny looking man calling him for his help. Suddenly funny looking man उसका आवाज लगाता है and he decided to help him. वो डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। He saw that the funny looking man had his friend. He saw, उसने देखा कि funny looking man and his friend were drinking something, कुछ ड्रिंक पी रहे थे। Then he too drank, उसने भी पी लिया। He fell asleep, वो फिर सो जाता है। And kept sleeping for next 21 years, और पूरे 21 साल 21 years तक नॉन स्टॉप सो जाता है। After 21 years, when he returned to his village, 21 years के बाद जो वो वापस अपने गांव आता है, everything seemed new to him, सब कुछ उसे नया नया लग रहा था। But he was overjoyed, लेकिन वो खुश हुआ किसे देख के? His daughter. After 21 years के बाद उसने मेरी बेटी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। He realized, उसने फिर अब महसूस करता है कि he had slept for a long time, वो इतना लंबा टाइम के लिए सोया, उसने अब ये फील किया है और उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख भी है। आज के लिए इतना ही बच्चों। एक्सरसाइज पार्ट हो गया बेटा आपका क्लियर?